ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہے, محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہے, اور آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ٹیلی فون نے بجنا شروع کیا ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال آپ کی ٹیلی فون کالز پروگرام کا حصہ بنیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ اپینڈکس کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو اس کا بھی تو کچھ ریلیشن جو ہے وہ غذا سے ہی بنتا ہے نا. دیکھیں, اپینڈکس جو ہے پہلے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ بڑی آنت اور چھوٹی آنت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ملائی ہے, وہاں ایک چیز رکھی سیکم, اس سیکم کے ساتھ اپینڈکس ایک چھوٹی سی چھنگلی نما یا اس سے بھی تقریباً چھوٹی ایک آنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو ویسٹیجل ہوتا ہے, جو شرنک ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے مختلف امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں, بعض دفعہ اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھانے کے بعد کوئی وزن اٹھا لیں تو سو جائے گا. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اچھا, مطلب ایسا نہیں ہے. اس میں ایک چیز جو ذرا سی توجہ طلب ہے کہ جو قبض والے جو مریض ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بات کیوں طویل ہو رہی ہے, میں سمجھ رہا ہوں اس کا چھوٹا جواب ہے کہ کالر بہت دیر سے موجود ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام, جی تعارف کرائیے گا. وعلیکم السلام. ہیلو جی السلام علیکم, تعارف کرائیے. ہیلو السلام علیکم, مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے گا, بالکل حکیم صاحب کا. جی مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ سردی کا سیزن ہے تو ہم بہن بھائیوں کو الرجی ہو جاتی ہے, یعنی نزلہ کام ہو جاتا ہے تو ناک بند ہو جاتی ہے, شدت سے نزلہ کام ہوتا ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹوٹکا نہیں, آپ کو انشاءاللہ دوا بتائیں گے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بتائیں گے حکیم صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے بھائی. جی میرا نام نعیم ہے جی, میڈک سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا. جی حکیم صاحب سے پتہ کرنا تھا جی, یہ کافی عرصے سے یہ سی ہے جی, ہیپیٹائٹس سی جو ہے اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی. اچھا, سمجھ میں ہیپاٹائٹس سی کی بات کریں نا. جی جی جی. اچھا, تو کتنا عرصہ ہوا اس کو ڈاکٹر کو دکھایا, ٹیسٹ کرایا؟ تقریباً اس کا جناب 10-12 سال تو ہو گئے جی. اچھا جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جناب تعارف کرائیے گا. جی میں ریاض سے بول رہا ہوں. کون صاحب؟ محمد یوسف. جی یوسف صاحب فرمائیے گا. میں نے بائی پاس کروایا تھا. کتنے عرصے پہلے؟ 2.5 سال ہو گئے. اچھا جی. ابھی رہا ہوں. ابھی کیا ہے؟ دوائی کھا رہا ہوں لیکن گیس ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ڈکار آتے ہیں. اچھی بات ہے. ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے دوبارہ, اس نے کچھ بتایا آپ کو؟ انہوں نے تو گولیاں دی ہیں, گولیاں کھاؤ جی بس ٹھیک ہو جاؤ گے. چلیے انشاءاللہ محمد یوسف صاحب آپ کو بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے جناب. آفتاب احمد. جی کہاں سے آفتاب صاحب؟ کوہاٹ سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فرمائیے گا آفتاب صاحب. جی حکیم صاحب, سر میری بات یہ ہے کہ میں تھائرائیڈ کا مریض ہوں جی, اور یہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جی. میں گلے کا مریض تھائرائیڈ, جس کے لیے میں تھائروکسین لے رہا ہوں. لیکن تھائروکسین سے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. مجھے خارش بھی بدن میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تپش ہو جاتی ہے, جلن اور ویکنس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور یعنی میرا سارا جو سسٹم ہے نا, نظام مطلب بری طرح جی میں سمجھ گیا. انشاءاللہ آپ کو پوچھ کے بتا دیں ڈاکٹر صاحب سے. بہت شکریہ آفتاب صاحب. میں چاہوں گا مزید کال سے پہلے جوابات. آپ سے نسخہ پوچھا انہوں نے, ان تو ٹوٹکا پوچھا تھا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کو بتائیے کہ اس موسم میں نزلہ زکام وغیرہ جو ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس موسم میں جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ یخنی ہے, کہ یخنی کا استعمال طب نبوی کے اندر بھی یخنی, اور یخنی کے اندر سیاہ مرچ فلفل سیاہ کا ذکر ہے موجود ہے. اس میں کہا گیا کہ ان دنوں میں یا تو مرغی کے پنجوں کا سوپ یا پھر بکرے کی ہڈیوں کا سوپ, اس کا استعمال کریں, گوشت کا سوپ نہ لیں. تو اس سوپ کو اس طرح بنائے کہ اس میں کالی مرچی کی ایڈیشن ضروری ہو. ایک شارجہ سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے گا اپنا. جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیں گے آپ اپنا؟ میرا نام لبنہ بی بی ہے. جی فرمائیے گا لبنہ, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میری بیٹی ہے ابھی
15 दिन की, उसे गैस का बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, तो उसके लिए कुछ बताइए। बच्ची को गैस का मसला होता है? अच्छा, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गैस के 2 ऐसे पेशेंट थे। एक साहब तो जो इससे पहले यूसुफ साहब ने बताया कि मैंने बाईपास कराया, उसके बाद प्रॉब्लम है। एक अभी लुबना ने कहा, क्या बच्चियों, छोटे बच्चों में, जैसे पिछले प्रोग्राम में हकीम साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डब्बा अतफाल। बात यह है कि चूंकि हमारे अभी तो 15 दिन की बच्ची, हाँ, मतलब ये है कि अगर माँ का दूध उस बच्ची को मैसर होगा तो अमूमी एतबार से ये जो गैस्ट्राइटिस बच्चों में होता है चाहे ये नहीं होगा। और बच्ची को डकार अच्छी तरह दिलाएं। जब भी आप उसको फीड करें उसके बाद लाजमी बच्चे को डकार यहाँ लगा के और आहिस्ता आहिस्ता उसको थपकी भी ना दें, क्योंकि बच्ची 15 दिन की है। तो सिर्फ अगर आप उसकी पीठ को ऐसे नरमी से सहलाएंगे ना तो भी बच्ची डकार ले लेगी। थोड़ा थोड़ा क्या फरमाएंगे यूसुफ साहब जैसे और जो दूसरे मरीज थे जो हमारे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से कॉल कर रहे थे, पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसा सिलसिला बन रहा है कि इंशाल्लाह जनवरी से उम्मीद ये है कि हम रेगुलर इस्लामाबाद में बैठा करेंगे। तो जो अहबाब मुल्क के दूसरे हिस्सों से कराची नहीं आ सकते तो वो उस सहूलत से फायदा उठाए, और इसका प्रोग्राम का जो सारा वो है वो फेसबुक पे मौजूद होगा। यूसुफ साहब की जो कॉल थी उसके हवाले से ये है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज इनको थी, इनका बाईपास हुआ। अमूमी एतबार से मैदे में तेजाबियत होती जो हमारे आज मौजू भी है। उसमें यह है कि देखें, एक तो खाने पीने में एहतियात रखें, जो चिकनी अशियां हैं वो ना इस्तेमाल करें, जो देर तक मैदे में ठहरती हैं ना, वो जो मैदे में देर तक स्टे करती हैं, फैटी फूड जो है देर तक स्टे करती हैं, उनसे एतराज करें। और इजीली डाइजेस्टेबल फूड में कभी भी इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पेट्रोल या ऑयल जो है पानी में हल नहीं होता, यकीनन वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है, कायम रहता है, और वो सब चीजों को मैदे के हमने आदतें खराब कर दी। हम सिंपली उसके अंदर मिर्च मसालों की आदी कर दिया। अब ये कि मिर्च मसाला आप नहीं लेंगे तो आपका हाजमा नहीं होगा। लेकिन गैस्ट्रिक के लिए मैं बता देता हूँ, गैस्ट्रिक का मैं बता देता हूँ कि पुदीना ले लें, अदरक ले लें, सौंफ ले लें, इन तीनों को पानी में बॉईल करके ये लीजिए। इससे एलर्जी भी जो नजले की है वो भी बेहतर होगी, और गैस्ट्रिक के लिए बड़ी उम्दा चीज है। दूसरी चीज इंजीर जो मैंने बताया कब्ज के लिए बहुत उम्दा चीज है। 3 इंजीर दूध में रात को बॉईल करके वो लीजिए, उससे कब्ज ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ कराइएगा। जी मैं सरगोदा से बोल रही हूँ। मेरे वालिद है, उनके मैदे में बहुत ज्यादा जलन होती है और रात को नींद भी नहीं आती। अच्छा, आपकी बात समझ में आ गई। जी जी जी, मैंने उसके बारे में सुनना था, कुछ बता दें कि उसका क्या है। इंशाल्लाह बताते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बस एक जो चीज मैं मैदे के हवाले से जो इनको भी जवाब दे रहा हूँ और यूसुफ साहब के लिए भी है कि देखिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और इस्लामी तालीमात है, उसमें जो है ना खाना लेट नाइट में नहीं होता कि 12 बजे रात को खाना हो रहा है या 11 बजे रात को हो रहा है। मगरिब के बाद खाना खाएं और ईशा के बाद जो सोने का वक्त है उसको भी आप रखें, पाबंदी करें, और तकरीबन 3 घंटे का वक्त रखें। मौजूद है, मैं चाह रहा था मुख्तसर जवाब। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारुफ कराइए भाई। जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ दुबई से। मैं यहाँ पाकिस्तान से इधर आया हूँ, यहाँ जॉब के लिए एग्जाम भी जाता हूँ तो हाँ तो हो जाती, बाद में फिर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलता मेरे को। मैं नहीं समझ पाया। ये कह रहे हैं जॉब के लिए आते हैं। अच्छा, ये टॉपिक ये कुछ और। हाँ, अच्छा, मैं कॉल लेता हूँ अभी थोड़ी सी देर में। मैं 1 मिनट पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आफ्ताब आलम साहब का जवाब था वो भी मैं आपसे ले लूँ। हाइपोथायराइड जो, जी हाँ जी हाँ, जिन्होंने थायरॉक्सिन लेते हैं जो वो प्रॉब्लम। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्ताब साहब से मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के वास्ते थायरॉक्सिन बंद मत कीजिएगा, और थायरॉक्सिन आपके लिए बहुत अहम हार्मोन है जो आपको लेना है। इसके अलावा जो करीब का डॉक्टर है उससे आप रुजू कीजिए। जो एलर्जी वगैरह होती है वो थायरॉक्सिन से अमूमी एतबार से नहीं होती, वो किसी और वजह से होगी, उसका ट्रीटमेंट कराएं। और अगर हिजामे का आपको मौका मिले तो हिजामे में हाइपोथायराइडिज्म का बेहतरीन इलाज है, और ये तमाम चीजें उससे हैंडल हो जाती हैं। अगर आप हिजामा करवाएंगे तो आप डॉक्टर से अपना इलाज भी जारी रखिए और साथ में हिजामा भी करवाइए। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज पहले आपको बंद करना होगी भाई, टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए और बंद करते हैं। अच्छा, अब अपना तारुफ कराइए। आप तो टेलीविजन पे अपने आप को सुन रहे हैं भाई। सर बात यह है कि मेरा हेलो, अब आप ही बोलिए सर। आप टेलीविजन पे अपने आप को सुन रहे हैं, मुझे अंदाजा है ना,
तो बोल चुका आपसे। दूसरी कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने आपसे पूछना था कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम है? ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर। आपने तारुफ नहीं कराया, कहाँ से फरमा रही हैं आप? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, खदीजा नकी। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्या है? हाई हो जाता है? मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 50 के करीब है। अच्छा, और तो बस यही बात है या और कोई भी बात है? यूरिक एसिड भी ज्यादा है। अच्छा, और हड्डियों की बहुत ज्यादा मसला हो गया है। अच्छा, पाँव टेढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, तो मुझे भी नहीं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। मैं दोनों हजरात से आपके हवाले से दरियाफ्त कर लेता हूँ। पहले हकीम साहब आप फरमाइएगा। यूरिक एसिड के लिए तो बिल्कुल मुस्तनद नुस्खा मेरा आजमाया हुआ है कि आप एक पहले यूरिक एसिड चेक करवाइए और उसके बाद रोजाना 50 ग्राम आलू के छिलके पानी में इतना उबालिए, एक गिलास पानी में, कि वो आधा पानी रह जाए। वो आप पीजिए 11 दिन के बाद अपना यूरिक एसिड करवाइए, इंशाल्लाह 2 या 3 पे आ जाएगा। दूसरी चीज जो इन्होंने बताया कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, उसके लिए बड़ी इलायची 3 अदद ले लीजिए और उनको कूट के पानी में थोड़ा सा बॉईल कीजिए और बॉईल करने के बाद सुबह के वक्त वो पी लीजिए और शाम के वक्त हरा धनिया या साबित धनिया जो बाजार में मिल जाए अगर, तो वो चाय का 1 चमचा इसी तरीके से हल्का सा भून के उसको खाने से ब्लड प्रेशर सही होता है। असरोल अगर आपको मिल जाए, पाकिस्तान से बोल रही हैं, छोटी चंदन एक बूटी होती है जो ब्लड प्रेशर का बड़ा बेहतरीन इलाज है। वो लोग बीपी के जो मरीज हैं वो भी अगर अपना दवाएं छोड़ने चाहें तो वो असरोल या छोटी चंदन को 1/4 ग्राम यानी कि 1 ग्राम का चौथा हिस्सा वो छोटी चंदन का पाउडर खाएं, इंशाल्लाह बीपी इससे कंट्रोल रहेगा। और अपनी ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दीजिए, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसी पर हम डॉक्टर साहब से भी रुजू करेंगे। डॉक्टर साहब से पिछला जवाब भी डॉक्टर साहब भी ड्यू है, लेकिन एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इस मरतबा भी हम इस सेगमेंट में भी आपकी कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। मुझे मालूम है कॉलर जो हैं उनके लिए हम एक